بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا تقوی القلوب. دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک کے اختتام کے بعد جو برکتوں کا مہینہ تھا، یہ ماہ شوال شروع ہوا ہے، جس میں بہت سی مناسبات ہیں، اور سب سے غمناک اور پرعلم تاریخ انہدام جنت البقیع کہ جس میں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے روزے اور اس شہزادی کائنات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا روزہ غاصب اور جابر حکومتوں نے جو ہے مل کر منہدم کیا. اور صرف یہی نہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا احترام کرنا چاہیے، صحابہ کا اکرام کرنا چاہیے، صحابہ کی عزت کرنا چاہیے، ان لوگوں نے صحابہ کا احترام کس طریقے سے کیا یہ پوری دنیا جانتی ہے. جہاں شہزادی کائنات کے روزے کو منہدم کیا، جہاں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے روزوں کو منہدم کیا، انہوں نے ان صحابہ کرام کے روزوں کو بھی منہدم کیا جو وہاں پر موجود تھے جنت البقیع میں. لیکن عالم اسلام اس بات پر خاموش رہتا ہے، عالم اسلام اس بات پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے، جبکہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ صحابہ کے مداح ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو مانتے ہیں. اور اگر اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ایک فرقے کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے، تو اپنی بات کو دوسرے فرقے پر انسان نہیں ڈال سکتا. اگر میرے نزدیک کوئی بات صحیح نہیں ہے اور دوسرے فرقے کے نزدیک کوئی بات صحیح ہے، ایک مذہب کے نزدیک کوئی بات صحیح ہے اور دوسرے مذہب کے نزدیک کوئی بات صحیح نہیں ہے، تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کسی بھی فرقے کو، کسی بھی مذہب کو، کسی بھی انسان کو کہ وہ دوسرے فرقے پر ظلم و زیادتی کرے. تو اگر آپ کے عقائد اتنے کمزور ہیں اور آپ یہاں قرآن مجید کو نہیں مانتے ہیں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت سے مطمئن نہیں ہیں، قرآن مجید کی آیات سے مطمئن نہیں ہیں، جو پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ومن یعظم شعائر اللہ، کہ جو انسان شاعر الہی کی تعظیم کرتا ہے، جو شاعر الہی کا احترام کرتا ہے، جو شاعر اللہ کا تقدس جانتا ہے، جو ان کی عظمت کو جانتا ہے، تو اسی کے دل میں جو ہے تقوی الہی پناہ گزین ہوتا ہے، اسی کے دل میں تقوی الہی ہوتا ہے. لیکن جو انسان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کافی ہے، کم سے کم انسان قرآن ہی پر عمل کرے، مگر ان لوگوں نے جو نہ اللہ کو پہچانتے ہیں، جو نہ نبی کو پہچانتے ہیں، جو نہ سیرت نبی کو پہچانتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو ان کے من میں آتی ہے. آج کی غاصب حکومت جو آل سعود کے نام پر جو سعودیہ بنا ہوا ہے، یہ شاید عربوں کے درمیان میں پہلی ایسی حکومت ہے جو آج تک اپنی مورثی اور اپنے باپ کے نام پر جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس سرزمین پر، جس مقدس مکان پر ہمارا نبی آئے تھے، ہمارے نبی مبعوث ہوئے تھے، تو کم سے کم اس ملک کا نام ہمارے نبی کے نام پر ہوتا، تاکہ دنیا جو ہے اس تقدس کو جانتی، اس احترام کو جانتی. مگر ظلم یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے نام پر اس ملک کا نام رکھا. چلو انہوں نے اپنے نام پر رکھا، تو یہ کہاں اجازت دی گئی ہے کہ نبی کے روزے کو سلامت رکھا جائے؟ نبی کا روزہ اگر بدعت ہی ہے، اگر یہ بات اچھی نہیں ہے کہ روزہ بنے، تو پھر یہ بتلائیے کس طریقے سے تم نے نبی کے روزے کو اس طریقے سے چھوڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف بدعت سمجھ کے نہیں، بلکہ یہ دشمنی اہل بیت تھی، جس کی وجہ سے، جس کے سبب سے ان لوگوں کو منہدم کیا گیا. اور یہ آج کی تاریخ، یہ کل کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ آج کی تاریخ بھی اگر آپ دیکھیں اور اس پر غور کریں، آج کا ایک فرقہ، جو نیا فرقہ انہوں نے یہ ایجاد کیا، جس کو آئی ایس کہتے ہیں، اور جس کا نام جو ہے داعش ہے،
उन लोगों ने वो जुल्म और ज़्यादती की है कि सहाबा किराम के रोज़ों को सिर्फ उसी वक्त नहीं, आज के ज़माने में भी उन्होंने मुतहदिम करके बतलाया। और इस बात से ये वाज़ेह हो गया, इस बात से ये चैलेंज हो गया, इस बात से ये अंदाज़ा हो गया पूरे आलम इस्लाम को, अगर कोई बाहोश है, अगर कोई इंसान इंसाफ पसंद है, कि ये फ़िक्र और ये लोग किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, ये लोग किसके इशारे पर लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ये वही टोला है, ये वही गिरोह है जिस तरीके से खालिद बिन वलीद जिस वक्त दूसरे दौरे पहले हो दौरे हुकूमत में ज़कात जमा करने के लिए गया है, और जाने के बाद नबी का सहाबी मालिक बिन नुवैरा जो यमन के अंदर रहता है, और वो ज़कात करने पर नबी की तरफ से जो है मुअय्यन है, लिहाजा उसके पास जब ये पहुँचे तो उसने इससे ज़कात देने से मना किया। कहा नबी का जानशीन हकीकी कौन है, मैं ज़कात सिर्फ उसी को दूँगा, किसी दूसरे को ज़कात नहीं दूँगा। इन्होंने उसके साथ जंग करना चाहिए। जब देखा कि हम इससे जो है पसपा हो जाएंगे और हम जो है इससे नहीं जीत पाएंगे, तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम सुलह करते हैं, आप नहीं देते, हम जो है बात वहाँ पहुँचाते हैं। और इन्होंने जो वहीं पर जो है पड़ाव डाला, आप तारीख़ इस्लाम पढ़ें। और उन्होंने रात को जो है जिस वक्त तमाम बस्ती के लोग सोए हुए थे, जाने के बाद मालिक बिन नुवैरा पर हमला कर दिया। उस मज़लूम मज़लूम सहाबी को शहीद कर दिया। और शहीद करने के बाद में यही नहीं कि उसको शहीद किया हो, चलो अगर ये शहादत, अगर उसको मारने के बाद, उसको कत्ल करने के बाद, उसको ज़िबा करने के बाद और ज़कात लेने के बाद वापस पलट आते, तो हम ये समझते कि इन्होंने जो है ये इस्लामी काम किया है, इन्होंने जो है ये इस्लाम के हुक्म पर अमल किया है, वो मुर्तद हो गया तलाउज़ुबिल्लाह। चलो, लेकिन हम इस बात को कैसे तस्लीम करें कि जो इंसान कत्ल करने के बाद उसकी ज़ौजा से फ़ौरन ही जो है वो ज़िना भी जबर करे, तो लिहाजा जो इंसान इस तरीक़े का हो वो इस्लामी किस तरीके से हो सकता है। और जिस वक्त मदीने में आए हैं सहाबा किराम और आने के बाद में शिकायत की, तो इस शिकायत को खलीफा वक्त ने रद्द कर दिया और उस पर जो है हज जारी नहीं की। दोनों की नीयतों को बखूबी इंसान समझ सकता है कि जो इंसान हुदूद इलाही किसी मुजरिम पर जारी नहीं कर सकता है, उसको उस ओहदे पर रखने का उसे क्या हक़ है। तो लिहाजा ये हर दौर में मुजरिम टोला जो है सहाबा किराम को, आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ये नुकसान पहुँचाता रहा है। लिहाजा आज भी तमाम आलम इस्लाम खामोश है। अगर कोई इंसान खामोश है और ये कहता है कि मैं अहले बैत को मानता हूँ, मैं अहले बैत को जानता हूँ, मैं अहले बैत की इताअत करता हूँ, मैं अहले बैत को चाहता हूँ, मैं सहाबा किराम का मुती व फरमाबरदार हूँ, मैं उन पर अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ, तो लिहाजा कहाँ है वो मुसलमान, कहाँ है वो आलम इंसानियत, कहाँ है वो लोग जो एक गासिब हुकूमत को ये नहीं कह सकते कि तुमने उस नबी की बेटी के रोज़े को मुनहदिम क्यों किया, और अगर किया है तो हमें इजाज़त दी जाए और हम जो है उस रोज़े को बनाएं तुम्हारे। और अगर ऐसी बात है कि शायर इलाही की जो है ताज़ीम नहीं की जाती, तो और बहुत से मकामात हैं, तुमने उन्हें किस तरह छोड़ा है। लिहाजा ये नबी की बेटी से अदावत इस तरीक़े की थी, लिहाजा ये इनका पता बतलाया जाता है कि किस कौम, किस कबीले और किस के इशारे पर काम कर रहे हैं। लिहाजा ये पुरदर्द और पुर अफसोस तारीख़ है। इसमें तमाम आलम इस्लाम को आज मीडिया के ज़रिए और अपने एहतजाजों के ज़रिए सऊदी गवर्नमेंट की जो है मुखालफत करना चाहिए। यह एक इंसान का वाजिब और शरई फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर हम वहाँ जाकर जो है इस वक्त उनसे जंग नहीं कर सकते, तो कम से कम अपनी बात आलम इस्लाम में पहुँचा सकते हैं, दुनिया वालों को बतला सकते हैं और ये समझा सकते हैं कि हम इस नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, हम इस इन्हिदाम के ख़िलाफ़ हैं जो इन्होंने किया है। हम चाहते हैं कि हमारी शहज़ादी का रोज़ा बने, हमारे आइम्मा के रोज़े बने, सहाबा किराम के रोज़े बने। ये हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है, जिस तरीक़े से भी वो अपनी बात को पहुँचा सकता है, लिहाजा वो पहुँचाए। आले सऊद है कौन? अगर इनका मुख्तसर शजरा देखा जाए तो ये वो लोग हैं जो 15वीं सदी ईस्वी में जो है कबीला अंज़र में एक शख्स माने नामी शख्स हुआ करता था, और ये ऐसा में रहता था, बहुत ही गरीब और फ़कीर इंसान था, मगर उसका एक चचेराज़ाद भाई था जिसका नाम वरा था। वो नजद के एक देहात में रहा करता था। लिहाजा वो एक दिन अपने चचेराज़ाद भाई से मिलने के लिए आया, तो वरा मुशीर दुरू का वहाँ लीडर और हाकिम भी था। लिहाजा वरा बहुत मालदार इंसान था,
1 साल माँ ने जब उससे ऐसा मिलने के लिए आया है तो उसने अपने तेजाज भाई को मुलाकात के लिए बुलाया और उसने जो है कुछ ज़मीनें उसको हिबा कर दी। लिहाजा जब इसको ज़मीनें हिबा कर दी तो उसके बाद ये थोड़ा इसके हालात संभले। उसके बाद जब वो इस दुनिया से चला गया इसका चचाजाद भाई, तो इसने ये किया कि सिर्फ उन ज़मीनों पर इक्तफ़ा न किया बल्कि आसपास की जितनी भी ज़मीनें थी उन पर जो है गस्ब करने के बाद में उसको जो है अब इकट्ठा कर लिया। लिहाजा ये तारीख़ इनकी है और ये बतलाती है कि इन्होंने शुरू ही दिन से ये जुल्म व सितम क्या है कि लोगों का जो है हक़ गस्ब करते रहे हैं। ये किसकी सीरत पर अमल है? रसूल की सीरत पर ये नहीं है। लिहाजा अगर आप देखें तारीख़ आले सऊद जो है वो जुल्म से भरी हुई है। आज नहीं है, ये जब से ये हुकूमत बनी है और आज तक आप अगर इसके जुल्मों पर नज़र करें तो जुल्म ही जुल्म नज़र आएगा। कोई अच्छा काम इनसे कभी कोई हमें तो नज़र नहीं आता। मुमकिन है किसी इंसान को नज़र आता हो। ये कहलाते हैं हरमैन शरीफैन के मुतवल्ली और हरमैन शरीफैन के जो हैं निगहबान, मगर ये कितनी जुल्म ज़्यादती मुसलमानों पर करते हैं। उस हरमैन शरीफैन के मुतवल्ली बनने के बाद आज यमन के अंदर मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। उनका जुर्म क्या है? सीरिया के अंदर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। ये सब यही है। लिहाजा वरना ISIS जो है वो कोई और पार्टी नहीं है, दाइश कोई और पार्टी नहीं है। लिहाजा इन्हीं के नज़रियात को लेने के बाद में उन्होंने जनाब हुजर इब्न अदी की कब्र को जो है वो मुनहदिम किया और सहाबी जलील क़द्र जनाब अम्मार यासिर की रक़्क़ा में जो है उनकी कब्र को मुनहदिम किया और जनाब उवैस क़रनी की जो है कब्र को मुनहदिम किया। लिहाजा ये आज भी इनके दिल में सहाबा किराम का इतना बोझ और इतना हसद है कि उनकी लाशों को निकालने के बाद में जब 1400 साल के बाद जो है जिनके यहाँ इतना जुल्म पाया जाता हो कि उनकी लाशों पर भी रहम न किया जाता हो, ये उनके साथ ज़िंदगी में क्या नहीं कर सकते थे। ये वही यजीदी टोला है, ये वही यजीदी फ़िक्र है जिसने फ़र्जंद रसूल को कत्ल करने के बाद नारे तकबीर कही हो। लिहाजा इनकी तकबीरों पर न जाइए, इनके जो है ईमान को देखिए कि इनका ईमान किस बुलंदी पर है, ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। ये यहूद व नसारा इज़राइल के इशारे पर काम करने के बाद सहाबा किराम की तौहीन करते हैं, सहाबा किराम को जो है इल्ज़ाम वो करते हैं, उनकी कब्रों को उखाड़ते हैं। लिहाजा हमारी तमाम आलम इस्लाम से गुजारिश है, इंशाअल्लाह ये दर्स हमारा शुरू रहेगा और इनकी तारीख़ जो है इंशाअल्लाह मुफस्सल बतलाएँगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।